بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وقت کی بات ہے کہ بیربل کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ اس کا گزر جنگل سے ہوا۔ جنگل میں بیربل نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ بیربل اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس جا کر پہلے تو سلام کیا، پھر اس سے مخاطب ہوا کہ جناب مجھے پیاس لگی ہے، اگر مجھے آپ تھوڑا پانی دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس لکڑہارے نے کہا، میاں میں اگر آپ کو پانی دے دوں تو مجھے پانی کون دے گا، کیونکہ میں اتنی گرمی میں کام کر رہا ہوں، پیاس تو ضرور لگے گی۔ وہ بیربل کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ بیربل اس کی بات سن کر اسے سلام کر کے رخصت ہونے لگا، لیکن اس لکڑہارے نے سوچا میں نے لکڑیاں کاٹ لی ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ان لکڑیوں کا گٹھر کون اٹھوائے گا۔ اس نے بیربل کو آواز دی اور کہا، بھیا میں تم کو اس شرط پر پانی دوں گا کہ مجھے تم یہ گٹر بنوا کر سر پر رکھواؤ گے۔ بیربل نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے پانی بیربل کو دیا۔ بیربل نے کلی کی، پھر جیب سے کچھ بیج نکال کر نیچے پھینکا اور اس پر تھوڑا پانی چھٹکا۔ پانی کا بیج پر پڑنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پھلدار درخت اگ گیا، اس میں پھل بھی لگ گئے۔ بیربل نے کچھ پھل توڑے اور دونوں نے مل کر کھائے۔ جو پانی بچا تھا وہ بھی دونوں نے پیا اور بیربل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غریب جو اب تک حیرت میں تھا، اس نے کہا، بھائی میں نے آپ کو پانی پلایا ہے، اس مہربانی کے بدلے تم بھی مجھ پر مہربانی کرو اور کچھ بیج مجھے دے دو، تاکہ میں اپنے بادشاہ کو یہ عجیب تحفہ دے کر انعام حاصل کروں، جس سے میرے دن پھر جائیں گے۔ بیربل نے اس کی بات سن کر کہا، ایک شرط پر میں تجھے یہ بیج دوں گا کہ تم میری 3 نصیحتیں یاد کر کے اس پر ہمیشہ عمل کرو گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کون سی نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بیربل نے کہا، پہلی یہ کہ اگر کبھی کہیں تجھے کوئی اجنبی ملے تو تو اس سے اس کا نام پتہ سب پوچھ لینا، کیونکہ کبھی بھی اس میں تیرا کام پڑ سکتا ہے۔ دوسری، اپنے دل کا راز کبھی بیوی کو نہ بتانا۔ اور تیسری اور آخری بات، 2 لوگوں کے بیچ میں کبھی نہ بولنا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، عمل کرو گے؟ لکڑہارے نے کہا، ہاں کروں گا۔ بیربل نے کچھ بیج اس کو دیے اور اس کے سر پر گٹھر رکھوا کر سلام کر کے چلا گیا۔ لیکن یہ لکڑہارا بیجوں کی خوشی میں اس کی پہلی نصیحت ہی بھول گیا کہ بیربل سے اس کا نام پوچھنا، اس کا مکان وغیرہ پوچھنا بھول گیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چلا آیا۔ جب اپنے دروازے پر پہنچا تو وہیں سے چلا کر بیوی سے کہا، جلدی آؤ، میرے لیے پانی لاؤ، تمہارے لیے ایک خاص چیز لایا ہوں۔ بیوی نے کہا، ارے کمبخت، جوانی میں ہی سٹیا گئے ہو، جو گٹھر سر پر ہے اور شور مچا رہے ہو، پہلے لکڑیاں تو پھینکو، پھر آرام سے بیٹھ کر بتانا کہ تم کیا لائے ہو۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھر پھینکا اور چہارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیوی پانی لائی اور بولی، اب بتاؤ کیا لائے ہو۔ اب اس کو بیربل کی دوسری نصیحت بھی یاد نہ آئی اور اس نے بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جس کا اثر اب تک تمہارے دماغ پر ہے۔ اس نے چارپائی کے قریب ایک بیج ڈال کر اس پر تھوڑا پانی ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں درخت اگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوا اور اس میں پھل بھی لگ گئے۔ دونوں میاں بیوی نے پھل کھایا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ بیج میں اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، اس نے ایسا پھل اور ایسا انوکھا درخت پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ بادشاہ خوش ہو کر مجھے بہت انعام دے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ لیکن بیوی خوش ہونے کے بجائے جل گئی، کیونکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسی بادشاہ کے ایک وزیر سے ملتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو وزیر سے کہا تھا کہ کچھ دن بعد میں اس کو اس کی غریبی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ لیکن اب اس کا یہ درخت کا بیج دیکھ کر اور اس کی بات سن کر جل گئی۔ اس نے سوچا، اگر یہ بادشاہ کے پاس یہ بیج لے کر گیا تو واقعی بادشاہ اس کو بڑا انعام دے گا اور یہ امیر ہو جائے گا، پھر وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ دن گزرا، رات ہوئی۔ اس رات وزیر اس سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ اس نے شوہر کو کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا ماندہ اپنی بیوی کو بیج دے کر اور یہ کہہ کر کہ اس کو سنبھال کر رکھنا سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو اس کی بیوی کا یار وزیر وہاں آ گیا اور لکڑہارے کی بیوی کو متغیر دیکھ کر تو اس سے کہنے لگا، آج کیا بات ہے، تمہارا منہ اترا ہوا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ تو وزیر نے کہا، وہ بیج کدھر ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس ہے۔ وزیر نے کہا، تب تو تو خوش ہو جا اور کل اسے دربار میں آنے دے۔ اس غریب کے پاس ایک بھینس بھی تھی۔ وزیر نے کہا، کل اس سے میں ایک ایسی شرط لگاؤں گا کہ تو بھی میری ہو جائے گی اور تمہاری بھینس بھی، مگر میں تجھے جیسا کہوں ویسا کرو۔ تم اب وہ بیج لے کر اسے تل دو۔
इस तरह वो बीज जल जाएगा, फिर वो नहीं उगेगा, बस उसके बाद सब काम मेरा होगा। लकड़हारे की बीवी ने वो बीज लेकर तला और उसी तरह जिस तरह पहले रखा था वहीं रख दिया। जब सुबह हुई, लकड़हारे की बीवी ने चाय नाश्ता बनाकर खुशी से लकड़हारे को जगाया और उसे बोली, अजी आज तुमने बादशाह के यहाँ जाना था। उसकी बात सुनकर लकड़हारा जल्दी से उठा और थोड़ा बहुत खा पी कर रवाना हो गया। वजीर इधर उधर परेशानी से झांक रहा था। बादशाह ने वजीर से कहा, खैरियत तो है ना, आज तुम परेशान नजर आते हो। वजीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, आपके होते हुए अल्लाह ने परेशानी दूर कर दी है। इतने में लकड़हारा भी आ गया और उसने आकर बादशाह सलामत को सलाम किया और कहा कि मैं आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूँ कि आपने इससे पहले ऐसा तोहफा न देखा होगा। बादशाह ने कहा, ऐसा कौन सा तोहफा है जो हमने नहीं देखा? लकड़हारे ने कहा, मेरे पास ऐसा बीज है जिसे बोकर पानी छिड़कने से उसी वक्त उसमें दरख्त बन जाता है और उसमें फल भी लगकर पक जाता है। इस बीच वजीर बोला, बादशाह सलामत, ये झूठ बोलता है। बीज बोने से उसी वक्त दरख्त उगकर कभी फल भी दे सकता है? जब ये गरीब लोग भूख से तंग आ जाते हैं तो ऐसी बेकी बेकी बातें करते हैं। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर लकड़हारे की तरफ देखा। लकड़हारा बोला, बादशाह सलामत, इस बात का अभी पता चल जाएगा, आप थोड़ा पानी मंगवाएं। वजीर ने कहा, अगर ये बीज ना उगे तो मैं तुम्हारे घर से 2 मुट्ठी भर के निकालूंगा जिसमें मेरी मुट्ठी पड़ी, नहीं तो तुम मेरे घर से 2 मुट्ठी लेना। उस गरीब को तो यकीन था, सो उसने वजीर की शर्त मान ली। बादशाह ने पानी मंगवाया। लकड़हारे ने बीज बोकर पानी छिड़का, मगर बीज तो जला हुआ था, उसमें से कुछ भी ना होगा। अब तो लकड़हारा बौखला गया। उसने सारे बीज एक एक करके बोए, मगर कुछ ना होगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, गरीब, दिल तो करता है तुम्हें फांसी पर लटका दूं, मगर तुम्हारी हालत पर मुझे रहम आता है, इसलिए जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उसने सोचा, अब वजीर मेरे घर से 2 मुट्ठी भर कर निकालेगा, मगर मेरे घर में क्या है? एक तो मेरी बीवी है, दूसरी भैंस। एक मुट्ठी में मेरी बीवी का हाथ पकड़ेगा, दूसरी में भैंस की जंजीर, मैं तो लुट जाऊंगा। उसने मौका गनीमत जानकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मेहरबान हो ही रहे हैं तो मुझे 15 दिन की इस वजीर से मोहलत दिला दें। उसके बाद शर्त के मुताबिक वजीर मेरे घर से 2 मुट्ठी जो चाहे निकाल सकता है। बादशाह ने कहा, मोहलत है, मगर वजीर जल गया, मगर नाचार खामोश रहा। बादशाह के सामने कर भी क्या सकता था? अब गरीब शख्स वहां से निकलकर बीरबल की तलाश में चल पड़ा। अब उसे बीरबल का नाम तो आता नहीं था, ना ही वो उसका पता जानता था। अब उसको बीरबल की नसीहत याद आ रही थी। उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उस भले आदमी ने मुझसे कहा भी था कि अगर कोई अजनबी तुमसे मिले तो उससे उसका नाम पता पूछना, मगर अब क्या हो सकता था? सारा दिन लोगों से पूछता रहा और उस सिमत चलता रहा जहां वो गया था। शाम के करीब उसे एक चरवाहा मिला। उसने उससे पूछा, भाई, कल तुमने फिलहाल टाइम फिलहाल रंग के घोड़े पर किसी शख्स को इस तरफ जाते देखा? उसने कहा, हाँ, वो तो राजा बीरबल थे, अकबर बादशाह के वजीर। ये सुनकर वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ, क्योंकि बीरबल का नाम उसने पहले सुन रखा था। उसको मालूम था कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो दिन रात सफर करके 2 दिन के बाद अकबर बादशाह की बादशाही में पहुंचा। उसको मालूम हुआ कि बीरबल बादशाह की दरबार गया हुआ है। वो सीधा महल की तरफ आया। महल की ऊंचाई से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दरबार लगी हुई थी। अचानक अकबर बादशाह कह के लगाने लगे और बीरबल से बोले, वो देखो बाहर एक आदमी गर्द उड़ाता दौड़ा आता है। बीरबल ने जो देखा तो उसे पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे पानी पिलाया था। उसका हाल देखकर लगता है जरूर किसी मुसीबत में है। बीरबल ने कहा, जनाब, ये पागल आदमी मेरा दोस्त है, मेरा मेहमान है। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा दोस्त है तो हमारा भी मेहमान हुआ। उसने दरबारों को हुक्म दिया कि उसे यहाँ लाओ। बादशाह ने दरबार बर्खास्त की और बीरबल के साथ बातें करने लगा। लकड़हारे को लाया गया तो उसने आते ही सलाम के बाद बीरबल को सब कहना चाहा, मगर बीरबल ने कहा, पहले पानी पी लो और खाना खाओ, हम रात को तुम्हारी बात इत्मीनान से सुनेंगे। अब उस लकड़हारे को तसल्ली हुई, वो बैठ गया। अकबर, बीरबल और लकड़हारा तीनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद बीरबल को अकबर ने कहा, जरा वो तरबूज तो लाना जो फिलहाल शख्स तोहफे में दे गया है, हम तुम्हारे मेहमान को भी खिलाना चाहते हैं। बीरबल ने पास रखा तरबूज उठाकर बादशाह के आगे मेज पर रख दिया। बादशाह ने कहा, बीरबल, काटने के लिए चाकू तो मंगवाओ। ये बात सुनकर लकड़हारा बीच में कूद पड़ा और एक जंग आलूद चाकू का टुकड़ा जेब से निकाल कर बोला, बादशाह सलामत, चाकू मेरे पास है। जैसे ही चाकू पर बादशाह की नजर पड़ी, बादशाह गुस्से में लाल हो गया और बोला, ये चाकू मेरी दरबार से चोरी हो गया था, उसके साथ बहुत सा कीमती सामान भी चोरी हो गया था। अभी ये चाकू तुम्हारे पास से मिला है, इसलिए तुझे मैं अभी के अभी जमीन में सर तक गाड़ कर
शिकारी कुत्ते तुम पर छुड़वाकर तुझे हलाक करूंगा। ये सुनकर लकड़हारे के तो हवास गुम हो गए और बीरबल सर पकड़कर बैठ गया। फिर बादशाह से अर्ज की कि जहां पना आज की रात इसको मोहलत दे दे, क्योंकि ये पता नहीं दिल में क्या हसरत लेकर आया है। रात को मैं इसकी रोदात सुन लूं, फिर कल सवेरे आप जैसा चाहें उसके साथ करें। बादशाह ने कहा, बीरबल मैं उसे छोड़ना तो पसंद नहीं करता, मगर क्योंकि तुम्हारा मेहमान है इसलिए आज की रात इसे मोहलत है, मगर शर्त यह है कि तुम इससे बात न करोगे। बीरबल ने कहा, हुजूर का हुक्म। सर आंखों पर बीरबल और लकड़हारा दोनों महल से निकलकर बाजार गए। बीरबल ने बकरा खरीदा और उसे लेकर घर आ गए और उससे बात न की, क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग जुबान के पक्के थे। जब रात हुई दोनों खाना खाकर चारपाइयों पर सोने के लिए लेटे। बीरबल ने बकरा दोनों चारपाइयों के बीच बांध दिया। अब लकड़हारा रो रहा था कि एक मसला हल नहीं हुआ और दूसरा जान पर बन आई है। जब बीरबल ने रोने की आवाज सुनी, उठकर बकरे को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़ने लगा। ये देखकर लकड़हारा छटपटाकर उठा और कांपने लगा। बीरबल ने जब देखा कि लकड़हारा उठ बैठा है तो उसने बकरे को मुखातिब करके कहा, बकरे तुझे मैंने नसीहत की थी कि दो लोगों के बीच में न बोलना जब वो आपस में बात कर रहे हों। तू आज बादशाह और मेरे बीच क्यों बोला? ये कहकर दो थप्पड़ और बकरे को जड़ दिए। बकरा मेमे करने लगा। फिर बीरबल बोला, बताओ बकरे क्यों आए हो? लकड़हारा समझ गया कि बीरबल ने बादशाह को जुबान दी थी वो मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए वो इस बकरे से कह रहा है जो मुझसे कहना चाहता है। फिर उसने बीच का वाकया और घर जाकर बीवी से सब कुछ कहना, दरबार जाना, धक्के खाकर यहाँ पहुंचना, गर्द शुरू से आखिर तक उसने सारा वाकया सुनाया। बीरबल ने बकरे को 2-3 थप्पड़ जोर के मारे कि बकरा मेमे करने लगा और लकड़हारा चौंक कर उड़ सा जाता था। फिर बीरबल ने कहा, मैंने कहा था अजनबी से पता पूछना, बीवी को दिल का राज ना देना, दो लोगों के बीच न बोलना, लेकिन तुमने बकरे एक बात न मानी। फिर एक थप्पड़ दे मारा बकरे को और बोला, अब जैसा बोलूं वैसा करना वरना जान भी जाएगी। उसके बाद बीरबल ने कहा, जब कल तुम्हें बादशाह दरबार में बुलाकर सजा देने को कहे तो तू कहना, बादशाह ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं खुद फिलहाल बादशाही का बादशाह हूँ। एक रात मेरे महल में चोर आए और चोरी करके निकल रहे थे कि मेरे अब्बू जाग गए। अब उनकी एक चोर से हाथापाई हुई। अब्बू ने शोर मचाया। चोर ने इस डर से कि कहीं दरबार ना आ जाए जल्दी से खंजर निकालकर मेरे अब्बू के पेट में दे मारा, जिससे मेरे अब्बू इंतकाल कर गए और चाकू अब्बू के पेट में रह गया, जिसको हमने निकाल लिया। अब मैं उस दिन से भेस बदल कर अब्बू के कातलों को ढूंढ रहा था। हर विलायत, हर बादशाही में गया, हर किसी ने कुछ न बताया, ना ही पता चला। इसलिए ये चाकू हर वक्त अपने पास रखता हूँ, यहाँ तक कि इसको जंग लग गया है, मगर फिर भी मैं इसको साथ रखता हूँ। आज ये चाकू तुमने अपना किया है, इसलिए मेरे बाप के कातिल तुम हो। अब मैं अपनी फौज लेकर तुमसे जंग करूंगा। मेरी फौज के आगे तुम्हारी फौज कुछ भी नहीं। जब बादशाह तुमसे मुआवजत करे तो कहना, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा कि बीरबल को 1 हफ्ता मेरा मेहमान बनने के लिए इजाजत दे दे। और हाँ, बादशाह से बादशाही रौब के साथ बात करना। जब बादशाह मुझे तुम्हारा मेहमान बनने के लिए इजाजत देगा तो तुमसे बात करने की इजाजत भी होगी और फिर तुम्हारी दूसरी परेशानी भी दूर कर दूंगा। उसके बाद बीरबल ने बकरे को 2-4 थप्पड़ मारकर कहा, अब सो जाओ और मेरी बात जहन नशीन कर लो। फिर दोनों सो गए और जब सुबह को दरबार पहुंचे तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं इसे जमीन में सर तक गाड़ कर उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छुड़वाता हूँ। अकबर की बात सुनकर लकड़हारा गुस्से में आ गया और लफ्ज लफ्ज बीरबल के कहने के मुताबिक बोला। और बीरबल ने भी बादशाह से कहा, हुजूर इसकी हर बात सच है, इसने मुझे मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि ये बादशाह हैं। उन्होंने कहा था हम खुद बादशाह को बताएंगे, लेकिन यहाँ इसको पुराने कपड़े और बदले भेस में देखकर आपने इसको कातिल कह दिया और माहौल बदल गया। अब तो अगर बादशाह मिन्नतों पर उतर आए और बोले, हम तुम्हारे बाप के कातिल नहीं, क्या हम बादशाह होकर चोरियां करेंगे? थोड़ी सी तको-दो के बाद उसने बादशाह से बीरबल को साथ ले जाने की शर्त पर सुलह कर ली। अकबर ने कहा, 1 या 2 हफ्ते ले जाओ, बस हमें माफ करो। उसके बाद बीरबल और लकड़हारे की बादशाही यानी घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में बीरबल ने उससे सब कुछ पूछ लिया और ये भी पूछा कि तुम्हारे घर में क्या क्या चीज है। लकड़हारे ने बताया, हम 2 मियाँ बीवी और 1 भैंस, 1 पुरानी चारपाई और फटा पुराना बिस्तर। बीरबल समझ गया कि सारा खेल लकड़हारे की बीवी का और वजीर का रचा हुआ है। वो सीधे लकड़हारे के घर आए। वहां आकर बीरबल ने लकड़हारे से कहा, जंगल से झोपड़ा बनाने के लिए दरख्त काट लाओ। वो जंगल के करीब रहते थे जहां से लकड़ियां काट कर लाता था। वहां से दरख्त काट कर लाया
बीरबल ने 10-12 फुट ऊंची झोपड़ी बनाई। उसके बाद लकड़हारे की बीवी को लकड़ी की सीढ़ी की मदद से उस पर बिठा दिया और लकड़हारे को कहा, भैंस खोलकर जंगल की तरफ हाँक कर भगा दो और उसके बाद उस वजीर को बुला लाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। वजीर खुशी खुशी ये सोचता हुआ आया कि एक मुट्ठी में मैं भैंस पकड़ूंगा, दूसरी में महबूबा। जब लकड़हारे के घर पहुंचा तो देखा कि भैंस घर में नहीं, महबूब ऊपर झोंपड़े पर बैठा है, सीढ़ी लकड़ी की लगी हुई है। उसने आओ देखा ना ताओ, सीढ़ी पर चढ़ने लगा। एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी में और तीसरी में जैसे ही हाथ डाला तो बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जो तुम्हारे हाथ में 2 लकड़ियां हैं, दोनों सीढ़ी से उखाड़ो और यहाँ से भागो। जब उसने देखा न महबूब मिल रहा है न भैंस, तो उसने कहा, ऐसा नहीं होगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारी शर्त क्या थी? उसने कहा कि मैं इसके घर से 2 मुट्ठियां भर के निकालूंगा जिसमें पड़ी। बीरबल ने कहा, अब तुम अपनी मुट्ठियां देखो। उसके दोनों हाथों में सीढ़ी की 2 लकड़ियां थी, यानी 2 सीढ़ियां थी जिससे उसकी मुट्ठियां भरी हुई थी, लेकिन वो फिर भी न माना। बीरबल उसको उसके बादशाह के पास ले गया, जिसने बात सुनकर बीरबल की बात की तायीद की और यूं लकड़हारा खुश और वजीर जलील और शर्मिंदा होकर रह गया। उसके बाद बादशाह ने बीरबल से नाम वगैरह पूछा तो बीरबल ने नाम के साथ करीब की कहानी भी सुना दी और यह भी कि वजीर ने किस तरह उसकी बीवी और भैंस हथियानी चाहिए थी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने वजीर को फांसी दे दी और लकड़हारे को इनाम देकर रुखसत किया और लकड़हारे की बीवी को बुलाकर डांट कर ताकीद की और यूं बीरबल कुछ दिन मेहमान शाही बनकर रहा। उसके बाद वो हिंदुस्तान रवाना हो गया और लकड़हारा उसकी नसीहतों पर हमेशा अमल करता रहा और हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, यूं ये कहानी तमाम हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।